Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता के आखिरी 2 श्लोक बचे हैं दूसरे अध्याय के 71 एंड 72, उसको देखेंगे। और जो क्विज जैसे वैजी माता जी ने रिक्वेस्ट किया था उसको देखेंगे हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रेयर्स। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो षड धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नवतालिकौ वंदे रूप सनातनौ गुरुदेव श्री जीव गोपालकौ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहं विदुः वेदान्तवेद्यविदेव चाहम्। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आई थिंक क्या करें, पहले क्विज करें या पहले श्लोका ले रहे हैं? प्रभु जी मेरे ख्याल से पहले हम चैप्टर कंप्लीट कर लेते। 2 ही श्लोक हैं अभी जो हमारे बच्चे हैं। ओके ठीक है, तो पहले क्विज कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग जैसे हमेशा करते हैं हम लोग रिकैप करेंगे। तो हमने श्लोका देखा था 67, 68, 69 और 70, 4 श्लोका देखे थे हम लोगों ने। तो डज एनीबॉडी वांट टू वॉलंटियर, क्या देखा था हमने लास्ट वीक में? पूजा माता जी, रेजी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, I can do it. यस माता जी। So 2.67 में what we did was how it is important to control the senses. Even if one of the senses is not under control, then it can take us away from Krishna consciousness. The example is that of a rowboat. So जो boat है, because of the strong wind, it can take the boat in any different direction. So that is the comparison that was made to the senses, that each of the senses can actually be drawn away from Krishna consciousness. You also gave some examples of हमारा this thing में Saubri Muni का example and Vishwamitra का example, how although they spend so many years in praying to Krishna, just by the sound of a pile, and then for Vishwamitra the hearing got taken away, and Saubri Muni, because of the vision, by seeing the fishes, all the tapasya that did kind of went away. We also drew an example of how Krishna himself in one of the earlier slokas says that we have to be like a tortoise and withdraw all our senses. So when
all these attractions come. Just like how the tortoise withdraws all its, the external organs and keeps it under the shell, that is the same way that we have to keep, our senses under control. That is 2.67. 2.68 में, the point here is, whoever keeps his senses under control is a man of steady intelligence. So you gave the example of, and how is that possible to reach that steady intelligence? You gave the example of a runner. So we've seen that how in marathons or in the athletics meet, sometimes the winner is actually wins by just a few seconds. But it is not just those, for him to actually get those few seconds of being ahead of others requires years and years of training. So in the same way, we have to train ourselves by, so when we leave our breath, in the end, we are conscious about Krishna, but that comes only with years and years of training. 69 May, we spoke about how, all jivas are called both here. A bhakta is one who will wake up when everybody is sleeping, and vice versa. And 2.70 में आपने controlling the mind के बारे में कहा, and how to keep the desires under control. Krishna will take care of our basic needs, but not our greed. And here you gave a beautiful example of an ocean. How the rivers are like desires that keep pouring into the ocean, but the ocean does not go beyond its boundary because the boundary is fixed. In the same way, our mind should also be steady and not move out of that boundary every time we get hit by the wave of the desires. So I think ultimately you said that in 2.54, Arjuna had asked this question, who is a sthita prajna? And the answer is actually found here, somebody who doesn't give in to all his desires. Hare Krishna. Thank you very much, Mataji. So very nicely summarized. तो अभी हम लोग देखेंगे जो 2 श्लोक बचे हैं. तो अभी तक जो था अर्जुन के 3 प्रश्न जो उसने 2.54 में पूछा था कि how does he sit, how is he defined, how does he react. So here now in these 2 shlokas, how does he walk? Kim asita vrajeta. How does he walk, and how does he, like what is he does when such situation comes, what does he does, वो हम लोग देखते हैं. तो we'll see first shloka number 71. I will just share. Yeah, okay. Shloka number 71. Vihaya kaman yah sarvan. If somebody wants to repeat, yeah. Okay. Vihaya kamanya sarvan. Umamscharati nispraha. Umamscharati nispraha. Nirmamo nirahankaraha. Nirmamo nirahankaraha. Sashantim adhigacchati. Sashantim adhigacchati. I'll repeat once more. Vihaya kaman yah sarvan. Umamscharati nispraha. Nirmamo nirahankaraha. Sashantim adhigacchati. So we'll see translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. A person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires,
who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. तो यहाँ पे क्या कहा गया है? विहाय कामान. विहाय means given up. What? कामान. यह सर्वान means all desires. Whatever कामना जो मतलब हमारे मन में है वो सबको त्याग देता है. पुमांस is the person nispraha and without any spraha. Spraha means any attachment. And nirmamo. There is nirmamo. Nirmamo means mamata. So without mama, that is nirmama. And nirahankara and ahankar. So if we see, there are biggest problem of living entity is aham and mameti. Means I am this, or I am that, I am doing this, and mameti. This is mine, this is mine, this is mine, this is my house, this is my bungalow, this is my car, this is my wife. So that proprietorship. So one who is getting freed, जो इससे मुक्त हो जाता है, निर्ममा निरअहंकार. What Lord is saying, भगवान क्या बोलते हैं? स शांतिम अधिगच्छति. He will attain the peace. उसको ही शांति मिलेगी. तो if we see in Bhagavatam, there is one very nice example of Maharaj Priyavrata. Maharaj Priyavrata was like that. He was a king of the whole we can say whole planet, but not even planet, our own this whole creation. And further what he did was he gave it up everything. If we go in 5th canto, तो 5वें स्कंद में हम लोग देखेंगे कि जो वैदिक कॉस्मोलॉजी जब आता है तो इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक डिफरेंट द्वीपास. तो ही वाज लिटरली के जो सारे पूरे अपना जो क्रिएशन है उसे कंट्रोल करते हैं. लेकिन जब उनको लगा कि अब आई शुड गिव इट अप, तो उन्होंने सारा जो है अपने पुत्रों को दे दिया. तो ही इज ए वेरी नाइस एग्जांपल कि इवन जब वो राजा थे, इवन व्हेन दो ही वाज अ किंग, वो राजा होने के बावजूद में भी ही वाज वेरी मच फोकस्ड. उनका जो पूरा ध्यान था वो भगवान के ऊपर था. उनका स्मरण हमेशा रहता था. ही यूज्ड टू ऑलवेज रिमेंबर लॉर्ड श्री कृष्णा एंड ही वाज टोटली फोकस्ड. सो एक्सटर्नली कोई सोच सकता है ये तो राजा है इतना बड़ा एंड ही इज ऑफ होल क्रिएशन एंड ही इज एंजॉयिंग, बट ऐसा नहीं था. Externally he was working as a king, but internally he was always thinking of the Lord. So this is how a devotee, ऐसा जो है एक भक्त को अपना जीवन जीना चाहिए. Then he will be peaceful. नहीं तो अरे ये मेरा है, ये मेरा है. Even we see हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो कोई हल्का सा सामने भी आ जाता है तो we start shouting, मेरे गाड़ी के सामने क्यों आया, मेरी गाड़ी के सामने क्यों आया. तो this is all why? Because of that proprietorship. This is my car and I am something. I am this person, I am that person. So ये दो चीज जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ममा एंड अहम एंड ममेति. So ये दोनों से हम लोग को मुक्त होना है. इससे जब मुक्त हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमको शांति मिल जाएगी. और फिर हमने देखा भी था कि लास्ट आई थिंक कपल ऑफ सेशन देखा था कि असली शांति क्या है. तो असली शांति जो है भगवान 5th चैप्टर में बताते हैं. लास्ट जो श्लोका है, तो श्लोका नंबर 29, उसमें बोलते हैं सर्वलोक महेश्वरम. व्हाट इज दैट स्टार्टिंग? इट्स भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मम शांति पृच्छति. तो ही इज द भोक्ता. व्हाटएवर इज द थिंग, जो भी है सारे सृष्टि में जो भी है वो उसके भोक्ता सिर्फ भगवान है. सर्वलोक महेश्वरम. तो ही इज द ओनर ऑफ द होल सृष्टि, होल क्रिएशन, not only this planet.
but this 14 universe is one creation, and like that there are millions and millions of creation. तो सभी के मालिक है, but still he doesn't have that, oh this is my creation, I have to do this. No, he creates and then he has vairagya also, इसलिए उनका नाम जो है उनको भगवान कहा जाता है। पराशर मुनि बहुत अच्छा डेफिनेशन देते हैं भगवान। भगवान मतलब क्या, जो जैसे रूपवान, जिसको रूप होता है उसको रूपवान बोलते हैं, जिसके पास धन होता है उसको धनवान बोलते हैं। वैसे भग मीन्स ऑपुलेंस, तो जिसके पास भग पूर्ण रूप से होता है उसको भगवान कहते हैं। एंड व्हाट इज दैट 6 ऑपुलेंसेस? नॉलेज, फेम, ब्यूटी, रेनंसिएशन, strength, and Wealth? there is wealth. Wealth? Yeah, श्रेयः, ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशसः, श्रेयः, ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नं भग इतिंगना। तो दिस इज द डेफिनेशन। आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर कहाँ पे है ये श्लोक, बट ये भगवान का डेफिनेशन पराशर मुनि देते हैं कि ये जिसके पास है वो भगवान है। तो नॉट ओनली ही इज द ओनर, ही हैज वेल्थ, ही हैज द होल क्रिएशन, बट वो उससे विरक्त भी हैं, रिनंसिएट भी हैं, मतलब उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो I remember, I don't remember, I think it was one Maharaj, एक महाराज ऐसे बोल रहे थे कि when we pass the stool, are we attached? Oh, my stool, this is part of my body. We are so immediately we want to run away from that place. That is renunciation. And Bhagavan is also like that. He creates the whole thing. It's not even slightly attached to that creation. So that kind of renunciation is there. So we need to have अहम एंड ममेती से जो है हम लोग को छुटकारा पाना है हम लोगों को। एंड ये जब होगा तब हम लोग को पूर्ण रूप से शांति मिल जाएगी। तो जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि जो स्थित प्रज्ञ है उसका क्या लक्षण है, किम आसीत, हाउ डज ही सिट, हाउ डज ही वॉक, तो ये जो लास्ट वाला हाउ डज ही वॉक यानी हाउ डज ही रिस्पॉन्ड, सो उसका आंसर ये 2 श्लोक है कि he is totally desireless, he doesn't have any vihaya kaman. So एक चीज ये होती है कि डिजायरलेस, तो हम लोग को अभी प्रश्न पड़ जाएगा कि हाउ कैन आई बी डिजायरलेस, मुझे तो बहुत सारे डिजायर हैं, तो व्हाट शुड आई डू। तो ओनली थिंग इज स्लोली वी हैव टू शिफ्ट हमारे जो डिजायर्स हैं वो भौतिक डिजायर से हम लोगों को स्पिरिचुअल डिजायर्स की तरफ हम लोग को लेके जाना है। लाइक ईटिंग, वी लाइक टू ईट नाइस थिंग्स, so what we have to do is we have to spiritualize instead of eating for our sense gratification, हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए खाने के बजाय हम इसे भगवान को अगर भोग लगाते हैं, हम लोग पहले भगवान को खिलाते हैं and then we accept it, then it becomes prasad. So whatever desire we have, eating, dancing, instead of dancing in some useless place, हम लोग मंदिर में कीर्तन होता है वहां पे जाके डांस करना चाहिए। सो एवरीथिंग वी हैव टू स्पिरिचुअलाइज, सो देन आवर डिजायर्स आर स्पिरिचुअलाइज। सो प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं डिजायरलेस होना मतलब इज नॉट गिविंग अप द डिजायर्स, डिजायर बिकॉज इवन अ डिवोटी हैज डिजायर्स, आई वांट टू सर्व द लॉर्ड, सो ही कैन नॉट बी डिजायरलेस। उसका भी इच्छा है, ऐसा नहीं कि वो इच्छा रहित है, भक्त जो है इच्छा, लेकिन उसका जो इच्छाएं हैं वो आध्यात्मिक इच्छा है, स्पिरिचुअल इच्छा है उसकी। मैं भगवान को भोग लगाना चाहता हूँ, 56 भोग खिलाना चाहता हूँ, अच्छा बेस्ट से बेस्ट जो फ्लावर्स है उसका हार बनाना चाहता हूँ। सो इज नॉट डिजायरलेस। सो डिजायरलेस मीन्स वी हैव टू गिव अप यूजलेस मटेरियल डिजायर्स। हमारी जो भौतिक इच्छा है इसको त्यागना है हम लोगों को, और जो भगवान की सेवा के लिए जो भी इच्छा है वो हम लोग को रखनी चाहिए। So that is what this means, vihaya kaman and nirmama nirahankar। वो हमने देखा कि we have to be away from false ego। तो ईगो, एक ईगो जो है वो कोई भी नहीं त्याग सकता, बट जैसे इसका नाम ही है फॉल्स ईगो, सो ये जो फॉल्स ईगो है
कि आई एम दिस बॉडी, आई एम इंडियन, आई एम ब्लैक, आई एम वाइट, आई एम such and such person, I have this degrees. No, our real ego, what is our real ego? हमारा सही जो है पहचान क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम लोग जो है भगवान के सेवक हैं हम लोग। तो ये रियल ईगो है। तो फॉल्स ईगो त्यागना है अपने को रियल ईगो में। और मम, तो फॉल्स ईगो और जो ममता है इसको छोड़ के हमें इसको स्पिरिचुअलाइज करना है। सो दिस इज व्हाट दिस श्लोका इज सेइंग। एंड ये ऐसा करेंगे तो शांति अधिगच्छति, हम लोगों को रियल पीस जो है, जो शांति है वो प्राप्त होगी। तो ये इस श्लोक में कहा गया है। हम लोग ऐसा जब होता है तो क्या होगा? जब हम लोग डिजायरलेस हो जाएंगे और इस तरह से हम लोग हमारी इच्छाएं आध्यात्मिक हो जाएंगी तो क्या होगा? ये लास्ट वाला जो दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक है, दिस विल डिफाइन दैट। तो वो हम लोग देखते हैं। जो शायद एषा ब्राह्मी स्थिति है पार्थ, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, नैनं प्राप्य विमोहयति, नैनं प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वास्याम् अंतकाले अपि, स्थितिवास्य अंतकाले प्रि, ब्रह्म निर्वाणं रिच्यति, ब्रह्म निर्वाणम् इच्छति, रिच्यति, ब्रह्म निर्वाणं रिच्यति। ब्रह्म निर्वाणम् रिच्छति। तो इसका अनुवाद तात्पर्य देखते हैं हम लोग। That is the way of spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated even at the hour of death, one can enter into the kingdom of Godhead. यहाँ पे क्या कहा गया है कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति, तो ऐसे ब्राह्मी स्थिति को जो है पार्थ, जो ऐसे ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचता है तो क्या होता है? नैनम प्राप्त विमोहित, वो विमोहित नहीं होगा। तो ब्राह्मी स्थिति इज व्हाट, जो 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 स्पिरिचुअल, यानी क्या बोलते हैं ना, जो जैसे ब्राह्मण जो है भगवान को ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो वो स्थिति जब पहुंच जाता है तो वो विमोहित नहीं होता। तो यहाँ पे वी शुड अंडरस्टैंड ये जो ब्राह्मी स्थिति है, तो कभी कभी इसको जो मायावादी लोग हैं ये कहते हैं कि ये जो निराकार ब्रह्मन है उसके बारे में कहा गया, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ये उस निराकार ब्रह्म के बारे में नहीं है। तो हम लोग देखेंगे आगे जब भगवद गीता में हम लोग जाएंगे तो विल सी कि भगवान बोलते हैं ये जो ब्रह्म ज्योति है ये भी मुझसे आती है। तो इट इज जस्ट वन ऑफ द भगवान का जो एट्रीब्यूट्स है वो है ये। तो यहाँ पे ये जो ब्राह्मी स्थिति है, यहाँ पे ब्राह्मण को प्राप्त करना नहीं कहा गया है, मतलब ब्राह्मण भी अगर बोले तो दैट इज लॉर्ड श्री कृष्णा। तो ऐसी स्थिति जैसे उनकी स्थिति है वैसे उस स्थिति पे जब पहुंचता है तो क्या होगा? वो कभी विमोहित नहीं होगा। दैट इज स्पिरिचुअल, ऐसे स्थिति में पहुंच जाएगा तो वो विमोहित नहीं होगा। और यहाँ पे क्या कहा गया है, आगे क्या कह रहे हैं भगवान? स्थितावास्यम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्यति। तो यहाँ पे आगे ये कह रहे हैं कि अगर कोई मतलब पूरा लाइफ जो है मेहनत कर रहा है तो एंड स्टिल ही इज नॉट एबल टू अचीव, बट अंत काले अपि, इवन एट द एंड ऑफ द, मतलब उसका लास्ट का 1 घंटा बचा है या उसका लास्ट का हम लोग देखेंगे एग्जांपल कि तो जो है प्रभुपाद जी महाराज जी इसमें तात्पर्य में खटवांग महाराज जी का उदाहरण देते हैं। उनका पूरा जीवन जो था वो देवताओं के लिए युद्ध करने में चला गया। वो सच ए ग्रेट फाइटर कि देवता उनकी मदद लेते थे। तो जब युद्ध सब खत्म हो गया तो उन्होंने पूछा
कि मतलब देवताओं ने पूछा, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, यू हैव हेल्प्ड अस, इतना आपने हमारा सेवा किया। तो वो बोलते हैं मेरा कितना टाइम बचा है, व्हाट इज द टाइम आई हैव लेफ्ट। तो उनको बोलते हैं अरे आपका तो कुछ एक टेक्निक संस्कृत वर्ड में भूल गया, एक क्षण या समथिंग बोला, उतना ही बचा है। जैसे उनको बोला उन्होंने सब छोड़ दिया और वहीं पे वो बैठ गए, और वहां पे बैठ के वो भगवान के ध्यान में लग गए, भगवान का स्मरण करने लगे। और जैसे ही स्मरण करने लगे वो तुरंत उनको जो है वो भगवान के पास चले गए, वैकुंठ चले गए। तो ये होता है, मतलब पूरा जीवन उन्होंने सारा युद्ध में लगा दिया, लेकिन जैसे ही पता चला कि मेरा समय आ गया तो तुरंत वो भगवान में लीन हो। तो ये यहाँ पे ये कहा गया है कि अंत काले अपि, इवन एट द टाइम ऑफ डेथ, हम लोग पूरा लाइफ कोशिश कर रहे हैं, हम लोग 20 साल 30 साल 40 साल स्पेंड करते हैं, लेकिन उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन इवन उस मृत्यु काल के पहले भी अगर हम लोग उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं, ब्रह्म स्थिति पर, तो ब्रह्मा निर्वाणम रिच्यति, तो ब्रह्मा जो निर्वाण, जो क्या बोलते हैं, भगवान का जो धाम है वो हम लोग पालेंगे हम लोग। तो वी शुड नॉट बी, मतलब ये एक हम लोगों को एक थोड़ा सा दिलासा देता है कि हम लोग पूरा लाइफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अभी तक अच्छे भक्त नहीं बने, मैं भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, भगवान का ढंग से जो है चिंतन नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तम, हमेशा मेरा चिंतन करो, हमेशा मेरा स्मरण करो। तो हम लोग तो दुखी हो जाते हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बट ये श्लोक जो है हम लोग को थोड़ा सा दिलासा देता कि अंत काले अपि, अगर इवन एट द टाइम ऑफ डेथ अगर हम लोगों ने उस स्थिति को पा लिया तो ब्रह्म निर्वाणम रिच्यते, हम लोग जो है भगवान के धाम जा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये श्लोक इस प्रकार है। और फिर यहाँ पे जैसे मैंने कहा खटवांग महाराज जी का उदाहरण है, तो दूसरा और एक उदाहरण है, एनीबॉडी इफ कैन थिंक इज अजामिल। जब हम लोग पूछते हैं तो बोलते हैं अजामिल ने पूरा लाइफ उसने जो था किया, अंत काले वो भगवान के धाम चला गया। बट इट इज नॉट लाइक दैट। दोनों का जो कॉन्शियसनेस है वो टोटल 180 डिग्री डिफरेंस है दोनों का। खटवांग महाराज जो थे वो देवताओं की सेवा कर रहे थे और उन्होंने पूरा अपना फोर्स लगाया, अपना ध्यान जो था पूरा भगवान में लगाया उन्होंने। लेकिन अजामिल का ऑपोजिट उल्टा है। अजामिल जो था पूरा जो आयु था वो उस जो वेश्या थी, वेश्या को खुश करने में लगी थी। एट द एज ऑफ I think 83, the age of 83, उनको एक पुत्र हुआ था जो नारायण था वो। एंड एट द एज ऑफ आई थिंक he was when he left, ये जब हुआ था लीला, आई थिंक he was at the age of 87, ऐसा कुछ था, 87 या 89 समथिंग था। तो you can just imagine even at that age, at the age of 87, 88, 89, he is still attached to that। लेकिन इसमें हम लोगों को भगवान का जो नाम है वो कितना पावरफुल है वो देखने मिलता है। वो नाम की वजह से, भगवान का नाम इज सो पावरफुल, इसके वजह से उनको भगवत का धाम मिला। लेकिन यहाँ पे जो इनका उदाहरण देखते खटवांग महाराज ही एंडिवर्ड, उन्होंने पूरा फोर्स लगाया। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें अजामिल का, तो अजामिल वो तो भगवान को भी नहीं पुकारा उसने, ही वाज कॉलिंग हिज सन, उनका जो बेटा है उसको पुकारता है। एंड भगवान का नाम और उनका नाम सेम है, इसके लिए भगवान जो आते हैं वहां पे। तो दैट्स अ टोटल डिफरेंस। सो वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद द कॉन्शियसनेस ऑफ अजामिला कि हम लोग अजामिल की तरह कुछ भी करें और एंड में हम लोग जो है भगवत धाम पहुंच जाएंगे। तो वी शुड नॉट बी लाइक दैट। हम लोगों को पूरा कोशिश करनी चाहिए। एंड खटवांग महाराज इज ऑल्सो एन एक्सेप्शनल केस। ही वाज सो पावरफुल, वो ऐसा कर पाए, लेकिन वी डोंट नो अबाउट आवरसेल्फ, हम लोग कर पाएंगे कि नहीं। जैसे हम लोग वही, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था मैराथन रनर। आज मैं अगर मुझे बोले मैराथन में जाने के लिए ओलंपिक्स में, तो टुडे जो भी है बेन जॉनसन या बोल्ट है या उनके साथ भागने बोला, आई कैन नॉट डू दैट सडनली इफ आई डिसाइड नाउ कि मुझे उनके साथ भागना, आई कैन नॉट डू दैट। फॉर दैट आई नीड प्रैक्टिस।
So that practice is very much important. और practice का बहुत महत्व है, and that we need to do throughout the life. So we should not take these examples of Ajamil or Khatwang Maharaj and think, okay, मैं बुढ़ापे में सब कर लूँगा. No, that will never happen. So we have to endeavor. And ये जब प्रयास हम लोग जब करेंगे तभी हम लोग भगवत धाम पहुंच सकते हैं. नहीं तो ये फिर से 84 लाख में फंस जाएंगे हम लोग, फिर कुत्ता बिल्ली बनेंगे, और फिर वो कब मनुष्य जन्म मिलेगा, और फिर उसमें भी हम लोगों को भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होगा कि नहीं, भी डोंट नो. सो वी शुड नॉट टेक द रिस्क एंड वी शुड एंडीवर. हम लोग को पूरा मेहनत करना चाहिए कि हम भगवान का नाम का स्मरण कर सके. सो ये जो है ये जो श्लोक है इसका इम्पोर्टेंस बताता है हम लोगों को. और यहाँ पे जो निर्वाण शब्द है, प्रभुपाद जी क्लियरली कहते हैं निर्वाण मतलब इट इज नॉट समथिंग विच जो बौद्ध फिलोसफी है कि निर्वाण को प्राप्त करना है, यानी पूरा जीवन जो भौतिक जीवन है उसको खत्म करके हम लोग को शून्य में जाना है. नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट. अकॉर्डिंग टू मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ उसका. प्रभुपाद जी कहते हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी देयर इज ओनली वॉइड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस मटेरियल लाइफ. तो भौतिक जीवन खत्म होने के बाद कुछ भी नहीं है, इट्स ओनली वॉइड. बट भगवत गीता ये सिखाती है कि एक्चुअल जो हमारा लाइफ है ये भौतिक जीवन खत्म होने के बाद स्टार्ट होती है. तो ये भौतिक जीवन खत्म करना है हम लोगों को और भक्तिमय जीवन जीना है. तो ऐसा नहीं हम लोग को 80 ईयर्स या 90 ईयर्स का वेट करना है उसके बाद हम लोग भक्ति करेंगे. नहीं, राइट नाउ हम लोग को इमीडिएटली. प्रहलाद महाराज तो कहते हैं कि कौमारम आचरित प्राज्ञो, नॉट इवन इफ यू आर 5 years old 6 years old, तब से भक्ति चालू करनी चाहिए हम लोगों को. वो तब से बोलते हैं. सो एटलीस्ट नाउ हम लोग जो भी एज है हम लोग का 40, 50, 60, वी शुड बी सीरियस. इतना साल मैंने वेस्ट कर दिया. प्रहलाद महाराज 5 साल से बोल रहे हैं. सो इफ वी आर 50 यानी 45 years आई हैव वेस्टेड. तो अभी तो मुझे भक्ति सीरियसली करनी चाहिए क्योंकि अभी भी टाइम कम है. तो वी शुड गेट सीरियस और हम लोगों को कृष्ण भक्ति में लग जाना चाहिए पूरी तरह से. और वो करते करते हम लोग जो है फिर ब्रह्म निर्वाणम रिचति, ब्रह्मा जो भगवान का धाम है उसमें पहुंच पाएंगे. क्योंकि जीवन का उद्देश्य वही है, हमें भगवत धाम को प्राप्त करना है. हमारे जीवन का उद्देश्य ये घर बनाना या बच्चों को संभालना या घर बार को संभालना नहीं है. भगवान ने इसलिए हमको मनुष्य देह नहीं दिया है. तो हम लोगों को मनुष्य देह दिया है भगवान की भक्ति करने के लिए. और ये जब भक्ति करेंगे ये तो इसका मतलब ये भी नहीं कि इसको छोड़ देना है हम लोग को. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको करना है हम लोगों को. बट दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ. गोल ऑफ लाइफ इज टू अटेन द कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो ये कॉन्शियसनेस, ये गोल हम लोग को माइंड में रखते हुए हम लोगों को जीवन में आगे बढ़ना है. तो ये जो श्लोक है इसमें यही कहा गया है कि इवन एट द टाइम ऑफ डेथ, हम लोग भले हम अभी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन इवन एट द टाइम ऑफ डेथ हम लोग भगवान का स्मरण कर पाए हम लोग, तो हम लोग जो है वी आर सक्सेसफुल. और इसके लिए हम लोग देखते हैं मेनी डिवोटीज जब उनको दे आर हैविंग सर टर्मिनल इलनेस, कुछ ऐसा बड़ा बीमारी है जहाँ पे पता है कि डॉक्टर ने टाइम बोल दिया यू हैव मैक्सिमम 3 months 6 months, तो वो लोग क्या करते हैं सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में आके दे जस्ट सेटल डाउन. बोला बाकी का जीवन में यहाँ भक्तों के बीच में कीर्तन सुनते हुए मन. और एक्चुअली भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जो है दे हैव अ स्पेशल सेक्शन कॉल्ड हॉस्पिस. वहाँ पे ऐसे ही भक्त जो अपने देह छोड़ने के लिए आए हैं उनका पूरा सेहत का ध्यान रखा जाता है. प्लस दे कीप चैंटिंग द होली नेम्स. भगवान का जो नाम है वो कंटिन्यू सतत कीर्तन जो है उनके सामने चलते रहता है. और जब लगता है कि नाउ ही इज गोइंग टू लीव हिज बॉडी, सारे भक्त वहाँ पे मिल जाते हैं. जस्ट दे कीप चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड, ताकि उसके इवन इफ ही इज नॉट एबल टू चैंट, भले ही वक्त बोल नहीं पाए लेकिन वो जो है भगवान का हरि नाम जो है वो सुन रहा है. तो जैसे राजा कुलशेखर अलवार थे, वो एक बहुत अच्छे साउथ के अलवार थे. तो वो भी यही कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अभी आई डोंट रिमेम्बर दैट श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है. बोलते हैं कि अभी मैं हेल्दी हूँ क्योंकि बुढ़ापे में मेरा कंठ जो है, मेरा सब
मतलब मैं बोल नहीं पाऊंगा, म्यूकस जो कफ से भर जाएगा मेरे, मतलब मैं भगवान का नाम का स्मरण नहीं कर पाऊंगा, मैं आंखों से देख नहीं पाऊंगा। सो नाउ आई एम हेल्दी, टेक मी राइट नाउ, ताकि जो है मैं आपका स्मरण कर सकूं। सो ये जो है, ये कॉन्शियसनेस जो है, समथिंग जो ओनली डिवोटीज कैन हैव। तो ये जो है हम लोगों को, ये एक उच्च स्तर है और वहां तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो हम लोग भगवत धाम पहुंच पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग जो है भगवान के पुत्र हैं। भगवान बोलते हैं मम एवांश जीवलोके जीव सनातन है। तो हम लोग वहां पे थे उनके साथ, लेकिन वी वर एनवियस। सो भगवान ने बोला ओके ठीक है, तुमको अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने ये छोटा सा, जैसे बच्चा जब मस्ती करता है बहुत तो क्या करता है, हम लोग उसको एक दूसरे रूम में बंद कर रहे हैं। तो भगवान ने ये भौतिक जगत दुखालय शाश्वतम ये बना दिया है कि यहाँ पे आप लोग आके रहो। तुमको मेरे पास अच्छा नहीं लगता, एटलीस्ट ही क्रिएटेड दिस वर्ल्ड और यहाँ पे रहो। अब यहाँ से हम लोग को जितने जल्दी से जल्दी हो सके छुटकारा पाना है और वापस अपने घर जाना है। इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमेशा, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, मतलब बैक होम ये असली घर है हमारा, वहाँ पे वो है। तो वो हम लोगों को फोकस हमारा बनाना चाहिए, गोल बनाना चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड इन दिस श्लोका, एंड आई जस्ट चेक इफ देयर आर एनी अदर पॉइंट्स। ओके, तो यही है। तो हम लोग का ये दूसरा अध्याय यहाँ पे खत्म होता है और हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग तीसरे चैप्टर में आगे बढ़ने के पहले आई वाज थिंकिंग विल डू समराइजेशन, पूरा जो फर्स्ट से लेके 72 श्लोक का है वो कैसे ट्रांजिट होता है, मतलब कहाँ से कहाँ, हाउ लॉर्ड इज कनेक्टिंग। वी विल सी द होल समरी ऑफ सेकंड चैप्टर एंड देन वी विल स्टार्ट थर्ड चैप्टर। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे, किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। या सिंस देयर इज नो क्वेश्चंस, ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं।